صبح سویرے اس تقریب کو منانے کے لیے جو ہے یہاں پہ موجود ہے سلامی دینے جو شمع وطن کے پروانے بنے ہیں آج خصوصی چیف گیسٹ تشریف لا رہے ہیں جو یہ فلیگ ہوسٹنگ سیریمنی تو فلاگ آفیسران وہاں روایتی خطک کے ساتھ ایس ڈی ایم صاحب کی سواگت کر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ منچ کی طرف بڑھتے ہوئے جو صاحب اور ہائر سیکنڈری کے پرنسپل صاحب بھی نظر آ رہے ہیں آہستہ آہستہ منچ کی طرف بڑھتے ہوئے ساقی اور ایس ڈی ایم صاحب آج کے مہمان خصوصی پریڈ نریشن کے لیے آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے ان کے ساتھ ان کے ہمراہ جو گراس کے جوان میں مضبوط چاق و چوبند نظر آ رہے ہیں پریڈ نریشن ختم ہونے کے بعد آہستہ آہستہ اسٹیج کی طرف بڑھ رہے ہیں. On this 75th year of independence, I congratulate all the participants and the inhabitants of these beautiful grasslands. To mark the independence and to pay homage to all those martyrs who sacrificed their life for our freedom. This day marks a great historical importance for its message, where it was not confined to a single thought of independence of a country, rather for an independent thinking, a free mind without bondage. The very long struggle of independence and the optimism echoed and reflected in the inaugural address by the first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, where he emphasized, and I quote, "Long years ago we made a tryst with destiny. Now the time comes when we redeem our wholly or in full measure, but very substantially, at the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom." The fight of independence was not only for its antagonism and hatred against a foreign rule, but was for a plethora of messages ranging from pluralism, liberty, fraternity, equality, secularism, and most importantly, the idea of unity in diversity. This idea of nation with its foundation in cherishing the diversity was a paradigm shift from the idea of unity, of similarity that existed. Now it is our collective cherishing the differences, because of these differences should not be the reason to be at loggerhead with each other. It is this unity in diversity that our freedom fighters sacrificed their life for. Mirza Ghalib, which goes like this: بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. Which roughly translate into there is nothing which گاڑی سرکت کرنے کی انمتی دیتا ہے شریمان. لدا فوری محمد ساقی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور ایس ڈی ایم صاحب سے اپنا پرائز
हासिल करें। अगर भी ऑर्डर जारी किए गए थे और इस वक्त पूरी इंडिया की अगर हम बात करें तो आज स्कूलों में भी गवर्नमेंट इसके बाद लाए संसदीय अपडेट्स के लिए जुड़े रहे के साथ फिलहाल दीजिए इजाजत करता हूँ। इसके बाद मैं गुजारिश करता हूँ नूर मोहम्मद साहब बीडीसी मेंबर द्रास से हासिल करें। इसके बाद तो काउंसलर हल्के जम्बर जी यहाँ तशरीफ लाए हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ वो भी यहाँ स्टेज पे तशरीफ लाएं। प्लीज हासिल करें, बीच में आता है प्लीज। इसके बाद मोहम्मद डीओ शीप एंड ऑल स्टाफ, एसडीओ द्रास शीप डिपार्टमेंट, इन्हें पंचायत से अपना प्राइज हासिल करें। फर्स्ट पोजीशन इन्हें मिला है, तो पुलिस आप तशरीफ लाएं और डॉक्टर अमजद से अपना प्राइज हासिल करें। ताहिरा बानू स्टूडेंट वोमेन सेकंड पोजीशन आए हैं, तो हकीमा बानू आए और अपना प्राइज एसडीएम साहब से हासिल करें। नूर जहान स्टूडेंट हायर सेकेंडरी स्कूल द्रास, फर्स्ट पोजीशन ये 10th में आई है, मैट्रिक में फर्स्ट पोजीशन नूर जहान डॉक्टर गुलाम मोहम्मद। तो प्लीज आजा सफा शकील अहमद स्टूडेंट हायर सेकेंडरी स्कूल द्रास, फर्स्ट पोजीशन इन 11th क्लास। तो आप तशरीफ लाएं और एसडीओ साहब से अपना प्राइज हासिल करें। तो अकलीमा बतूल डॉक्टर ऑफ मंजूर अहमद स्टूडेंट हायर सेकेंडरी स्कूल द्रास, फर्स्ट पोजीशन इन 11th क्लास। आज 75वां यौम आज़ादी है हमारे हिंदुस्तान का, तो आज पूरे हिंदुस्तान वासियों के लिए हमारे तरफ से मुबारकबाद का मुस्तहक़ हैं। और हमें और आज हमारे यूथ को ज़रूरत है कि हमारे हिंदुस्तान की इस धरती की तरक्की के लिए आज काम करने की ज़रूरत है। लेकिन इस काम में सबसे पहले इनको ज़रूरत है कि तालीम की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें और अपनी इल्म से, अपनी इस इल्म के नूर से इस मुल्क को और इस मुल्क की खिदमत करें, इस आवाम की खिदमत करें। आज हमारे लिए हमारे मर्द, हमारे औरत, हमारे बूढ़े, हमारे जवान, इन सब के लिए आज खुशी का मुकाम है कि आज हमारे यहाँ हिंदुस्तान फलते और फूलते हैं। और 1957 के बाद, 1947 के बाद आज हम एक तरक्की की राह पर हैं। तो ये तरक्की की राह जो है अभी रुकना नहीं है, बल्कि ये आगे की तरफ जाना है। तो इस तरक्की के लिए हम सबको मिलकर जब तक नाकाम नहीं करेंगे, हमारे फौज जो हैं वो हमारे इसकी सरहद की निगरानी कर रहे हैं, तो हमें इस फौज के साथ भी हमारे खुसूसन हमारे द्रास इलाके ने हमारे फौज के साथ हमेशा दिया है। तो आज भी ज़रूरत है कि हमारे सरहद में जो निगरान हैं उस फौज के साथ हमें साथ देना है। तो इंशाअल्लाह हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद कहना चाहता हूँ। आज हमारा 75वां यौम आज़ादी मनाया गया द्रास में, बड़े उत्सव के साथ मनाया गया। और पूरी पब्लिक को मेरी तरफ से 75वां यौम आज़ादी की मुबारकबाद। सबको साथ में चलना है, साथ में सबको लेकर चलना है और हमें जब भी ऐसा मौका मिलता है इन पे पार्टिसिपेट करना चाहिए। और हमारे सबसे ज़्यादा हमारे मुल्क की फौज का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जो रात दिन जो है हमारे इन सरहदों में, जहाँ पे -24 -50 तक जाती है, इन सरहदों में हमारी हिफाजत करते हैं। और मैं आप तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ।